UT Peshawar undergraduate admissions fall 2026. آپ لوگ جانتے ہیں کہ UT پشاور نے فرسٹ اوپن میرٹ لسٹ اور فرسٹ سیلف فائنانس میرٹ لسٹ اپلوڈ کرنا ہے. پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ فرسٹ اوپن میرٹ لسٹ اور فرسٹ سیلف فائنانس میرٹ لسٹ 6 اگست 2026 کو اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن یونیورسٹی نے 2 دن کے لیے آن لائن ایڈمیشن اپلائی ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا، جس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اب جو فرسٹ میرٹ لسٹ ہے وہ 6 کی بجائے 8 اگست 2026 کو اپلوڈ ہو جائے گا. لیکن اب یونیورسٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرسٹ اوپن میرٹ لسٹ اور فرسٹ سیلف فائنانس میرٹ لسٹ 9 اگست 2026 کو اپلوڈ ہو جائے گا. یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت 9 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، رات کے 1 بجنے والے ہیں. 9 اگست 2026 کے ساتھ انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، تو امید ہے کہ فرسٹ اوپن میرٹ لسٹ اور فرسٹ سیلف فائنانس میرٹ لسٹ 9 اگست 2026 کو یعنی آج کے دن ڈسپلے ہو جائے گا. آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنا پروفائل وقفے کے ساتھ چیک کیا کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ UT پشاور کا جو ویب سائٹ ہے یا UT پشاور کا جو فیس بک آفیشیل پیج ہے وہ وزٹ کیا کریں، تو آپ لوگوں کو جو صحیح معلومات ہیں وہ حاصل ہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو UT پشاور سیل نمبر گیون ہے 09192167784. تو فرسٹ اوپن میرٹ لسٹ اور فرسٹ سیلف فائنانس میرٹ لسٹ کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب اگلا جو سوال ہے جو اکثر اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرسٹ اوپن میرٹ لسٹ لاسٹ سکور کیا ہوگا اور فرسٹ سیلف فائنانس میرٹ لسٹ لاسٹ سکور کیا ہوگا. تو دیکھیں، اس حوالے سے پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے 2023 اور 2024 کا کمپیریزن کیا تھا. ایوٹا ٹیسٹ سمریز کو میں نے یکجا کر کے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2025 کا لاسٹ سکور کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ ٹائم شارٹیج کی وجہ سے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی میں نہیں کر سکا. لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک ہے لاسٹ سکور 2024 کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا لاسٹ سکور ہے 2025 کا. سمجھ آئی؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے لاسٹ سکور دیکھنا ہے 2024 کا، کیونکہ 2024 میں ایوٹا ٹیسٹ مشکل تھا. اس وجہ سے 2024 کا جو لاسٹ سکور ہے یا جو ایگریگیٹ ہے وہ لو تھا. 2024 کا ایگریگیٹ کیا تھا؟ لو تھا، میرٹ لسٹ لو تھا، ٹھیک ہے. جبکہ 2025 میں ٹیسٹ ایزی تھا، ٹیسٹ آسان تھا، اس وجہ سے میرٹ لسٹ ہائی تھا، ایگریگیٹ ہائی تھا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں
यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्ले लिस्ट, इस पे आप लोग क्लिक कर लें। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक से ज्यादा प्ले लिस्ट ओपन हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग नीचे आते जाएं, इसमें आप लोग देख लें यूटी पेशावर एडमिशंस 2025, यूटी पेशावर एडमिशंस 2025, ये आप लोग देख लें। ये प्लेलिस्ट जो है ये 2025 का है। इसमें मैंने मेरे ख्याल में 7 मेरिट लिस्ट लास्ट स्कोर्स अपलोड किए हैं। समझ आई? 110 वीडियोस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन 2025 का लास्ट स्कोर आप लोगों ने फॉलो नहीं करना, क्योंकि 2025 में ईटा टेस्ट जो है, ईटा टेस्ट 1, ईटा टेस्ट 2 वो इजी थे, जिसकी वजह से 2025 में लास्ट स्कोर हाई था। तो इसको आप लोग फॉलो ना करें, वरना आप लोग गुमराह हो जाओगे। तो गुमराही से खुद को बचाने के लिए आप लोग 2024 का जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग देख लें। तो देखते हैं 2024 का प्लेलिस्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। 2024 प्लेलिस्ट यूटी पेशावर, ये देखें, सब वीडियोस पे मुश्तमिल है। इसमें मैंने ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस दोनों के लास्ट स्कोर्स बताए हैं। फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट, सेकंड ओपन मेरिट लिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल ये सब वीडियोस हैं। फीस स्ट्रक्चर और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस, ऑनलाइन हॉस्टल अप्लाई वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर लास्ट स्कोर जानना चाहते हो 2026 का, तो इसके लिए आप लोग ये वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें 2024 का। समझ आई? ये आप लोग देख लें। अगर कोई स्टूडेंट 2025 का प्लेलिस्ट देखना चाहता है तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग लास्ट स्कोर के लिए 2024 वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि 2024 वाला प्लेलिस्ट जो है वो आपको 2026 लास्ट स्कोर के बारे में सही मालूमात देगा। समझ आई? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि 2024 का जो लास्ट स्कोर है या 2024 का जो मेरिट है या एग्रीगेट है, वो 2026 एग्रीगेट के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, अगर आप 2025 का देखोगे तो फिर आप टेंशन में मुब्तला हो सकते हो, क्योंकि 2025 का ईटा टेस्ट आसान था, जिसकी वजह से मेरिट हाई था। तो 2025 का आप लोग ना देखें, चस्के के लिए आप देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन जो इस दफ़ा लास्ट स्कोर होगा वो 2024 के करीब होगा। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर के हवाले से सवाल पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को पिछले साल यानी 2025 का फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। आप लोग समझें कि किसी भी सेमेस्टर की जो फीस होती है वो आप 2 हिस्सों में जमा करते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग यूटी पेशावर मेन कैंपस, केमिकल इंजीनियरिंग यूटी पेशावर मेन कैंपस, सिविल पेशावर, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग पेशावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर हो या कम्युनिकेशन हो या कंप्यूटिंग एंड एआई हो, पेशावर मेन कैंपस। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पेशावर। इन तमाम का फीस आप लोग देख सकते हो सेम है। 4 साल की जो फीस है वो है 7,34,485। पहले साल की फीस कितनी है? 85,000। ये आप लोगों ने 2 हिस्सों में जमा करनी है। 45,000 आप लोगों ने एडमिशन इंटरव्यू के वक्त, जबकि बकिया 40,000 रुपये आप लोगों ने 2 माह बाद जमा करनी। ये पहले साल की पहले सेमेस्टर की फीस हो गई।
अब दूसरे सेमेस्टर पे आप लोग आ जाएं, ये भी 85,000 है। तीसरे सेमेस्टर की फीस आप लोग देख लें, इस तरह चौथे सेमेस्टर की फीस आप लोग देख लें, पांचवें सेमेस्टर की फीस आप लोग देख लें, छठे सेमेस्टर की फीस आप लोग देख लें, सातवें सेमेस्टर की फीस आप लोग देख लें, और आठवें सेमेस्टर की फीस आप लोग देख लें। तो दो हिस्सों में आप लोगों ने ये फीस जमा करनी है। पहला हिस्सा जो है ये आप लोगों ने सेमेस्टर के शुरू में, और दूसरा हिस्सा सेमेस्टर के 2 माह बाद आप लोगों ने जमा करने होते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये फीस जमा नहीं करते तो आपको एग्जाम के लिए हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब आप पेपर नहीं दे सकोगे। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा सीरियस लें। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि ये ओपन मेरिट फीस है 2025 का, समझ आई। इस साल जो फीस होगा वो आप ये समझ लें कि पिछले साल अगर पहले सेमेस्टर की फीस 85,000 थी, तो इस दफ़ा ये फीस तकरीबन 95,000 होगी, मतलब 8-10 हज़ार रुपये इसमें इजाफा आएगा एक सेमेस्टर के हिसाब से। तो इसमें आप लोग 8-10 हज़ार रुपये जमा कर लें। बिल्कुल इसी तरह इस तीसरे सेमेस्टर में आप लोग 8-10 हज़ार रुपये जमा कर लें, एंड सो ऑन आप लोग ये इस तरह चलते जाएं। ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर हैं। हर एक सेमेस्टर में अगर आप 8-10 हज़ार रुपये जमा कर लो तो टोटल जो है ये 8,10,000 या 8,20,000 तक बात पहुंच जाएगी। तो ये तमाम प्रोग्राम्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कौन कौन से प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं इन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। और ये है सिर्फ और सिर्फ यूटी पेशावर मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग दूसरे प्रोग्राम्स के लिए अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। अब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूटी पेशावर मेन कैंपस, इसका भी आप लोग अपने साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेशावर, इसका भी वही है। माइनिंग इंजीनियरिंग पेशावर, इसका फीस भी वही है जो पहले मैंने बता दिया। एनर्जी इंजीनियरिंग, इसका भी वही है 7,34,485। अच्छा, सिविल बनू, इसका फीस वही है जो ऊपर मैंने बता दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बनू की बात कर लें तो इसकी फीस कम है, 5,18,460। सिविल इंजीनियरिंग जलोजई, इसकी फीस 7,34,485। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जलोजई, चाहे वो पावर हो, कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटिंग एंड एआई हो, इसकी फीस कम है। ठीक है, इस तरह आप लोग नीचे आ जाएं, मजीद प्रोग्राम्स की फीस भी आप लोग देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जलोजई, इसकी फीस 5,18,460। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जलोजई, इसकी फीस 5,18,460। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एबटाबाद, इसकी फीस 5,18,460। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एबटाबाद, इसकी फीस है 7,34,485। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर की फीस वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये पहले सेमेस्टर की फीस है, ये दूसरे सेमेस्टर की फीस है, और इस तरह तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। तो 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। हर एक सेमेस्टर की फीस आप लोगों ने 2 हिस्सों में जमा करनी है। अब अगर हम ओपन मेरिट सीट्स नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात कर लें तो ये है 2025 की फीस। कंप्यूटर साइंस पेशावर मेन कैंपस, ये आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डेटा साइंस पेशावर, इसकी फीस भी आप लोग देख सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन पेशावर, 4 साल की जो फीस है वो आप लोगों के सामने है। कंप्यूटर साइंस जलूसई, कंप्यूटर साइंस एबटाबाद, कंप्यूटर साइंस बनू, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनू। तो ये फीस स्ट्रक्चर है ओपन मेरिट नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के नाम आप लोग देखें, और यहाँ पे आपके सामने कैंपस भी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो फीस है वो सेमेस्टर वाइज आपको बताई गई है कि पहले सेमेस्टर की फीस कितनी होगी, दूसरे सेमेस्टर की फीस कितनी होगी, एंड सो ऑन। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल प्रोग्राम है, इसमें 10 सेमेस्टर्स होंगे। ओपन मेरिट एबटाबाद,
फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं 9,43,934, जबकि पिशावर आर्किटेक्चर सेल्फ फाइनेंस फीस है 17,76,816। अब अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस फीस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स सेल्फ फाइनेंस फीस स्ट्रक्चर पिछले साल की, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग पिशावर, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग पिशावर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पिशावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पिशावर, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इसके अलावा केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग जलूसई, सिविल इंजीनियरिंग बनू, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एबटाबाद। ठीक है, सेमेस्टर वाइज फीस आप लोग देख सकते हो, अपने साथ आप लोग नोट कर लें। और यहाँ पे टोटल फीस लिखा हुआ है 4 साल यानी 8 सेमेस्टर की जो फीस है किसी भी प्रोग्राम की, सेल्फ फाइनेंस फीस है। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, इसके अलावा हर एक सेमेस्टर की फीस आप लोगों ने 2 हिस्सों में जमा करनी है। पहले हिस्से की जो फीस है, पहले इंस्टॉलमेंट जो है वो आप लोगों ने सेमेस्टर के स्टार्ट में जमा करनी है, जबकि दूसरी इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने 2 माह बाद जमा करनी होगी। इस तरह कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, तो ये भी आप लोग देख लें। ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, ये भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फीस भी आप लोग अपने साथ नोट कर लें। इसके अलावा रिफंड पॉलिसी, यू पिशावर रिफंड पॉलिसी मतलब कल को अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो आपको कितनी फीस वापस की जाएगी, तो इसको हम रिफंड पॉलिसी कहते हैं। सपोज आपकी क्लासेस 7 सितंबर से स्टार्ट हो गए, तो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल कर देते हो तो 100% फीस आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट कर लें, जो एडमिशन फीस है जो कि तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये होती है, वो आपको किसी भी सूरत में वापस नहीं की जाएगी। एक दफ़ा आपने एडमिशन कंफर्म किया, एक दफ़ा आपने फीस जमा की, तो बस आप ये समझ लें कि 15-20 हज़ार रुपये आपके चले गए। अगर आप उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर एडमिशन कैंसिल कर देते हो तो ये 15-20 हज़ार रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, जो बकिया रकम है वो आपको वापस मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपने 3 माह या 4 माह इंतज़ार करना होगा। समझ आई? इसके अलावा अगर आप 10 दिन आ, के अंदर एडमिशन कैंसिल नहीं करते, 10 दिन के बाद यानी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां या 15वां दिन जो है, उस दिन अगर आप एडमिशन कैंसिल कर देते हो तो 80% फीस आपको वापस कर दी जाएगी। मतलब जो एडमिशन फीस है 15-20 हज़ार रुपये वो तो चले गए, उससे तो आप नाउमीद हो जाए, वो तो आपको किसी सूरत नहीं मिलेंगे। लेकिन बकिया जो फीस रहती है उसका 20% आपसे काटा जाएगा और 80% जो है वो आपको वापस मिलेगा। अगर पहले 15 दिन के अंदर आप फीस जो है वो सॉरी एडमिशन कैंसिल नहीं करते तो 16th डे या 17th या 18th या 19th या 20th, ठीक है, ये जो 5 दिन है इसमें अगर आप एडमिशन कैंसिल कर देते हो तो एडमिशन फीस के अलावा 60% आपको वापस किया जाएगा। समझ आई? अगर 20 दिन गुजर जाए, आप एडमिशन कैंसिल नहीं करते, लेकिन 21वें दिन से लेकर 30वें दिन के दरमियान ये जो 10 दिन है इसमें अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो हाफ फीस आपको वापस की जाएगी। समझ आई? सपोज आपने 55 हज़ार रुपये जमा किए हैं, तो 15 हज़ार एडमिशन के आप निकाल दो, कितने रह गए? 40 हज़ार। तो 40 हज़ार में से 20 हज़ार रुपये आपको वापस किए जाएंगे। 1 महीना गुजर गया, आपने क्लासेस ले ली 1 माह के लिए और आपने एडमिशन कैंसिल नहीं किया। ठीक है, 1 माह क्लासेस लेने के बाद आप अगर एडमिशन कैंसिल करते हो
तो ठीक है, आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे, लेकिन 1 रुपया भी आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 माह जो है ये काफ़ी अरसा होता है। अगर आपने फैसला करना है तो आप इस 1 माह के अंदर अंदर डिसाइड करने के मैंने क्या करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये फीस स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये फीस स्ट्रक्चर था, फीस स्ट्रक्चर 2025 का। ठीक है, मैंने आप लोग के साथ जो फीस स्ट्रक्चर शेयर किया, ये ओपन मेरिट के लिए भी था, और सेल्फ फाइनेंस का फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का भी मैंने आप लोगों को बताया कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।